Acha beta, today we are going to solve 0580 IGCSE paper 4-2, that is of extended 1, paper 4 extended 1. The variant is 2 over here. This is the paper of May-June 2023. The time for this paper is 2 hours 30 minutes. Again, the main instruction, that is calculators are allowed. Where appropriate, you can use a calculator. And for non-exam numerical answers, you have to give the answer in 3 significant figures, and the decimal in 1 decimal place for the angles in degrees over here. The same instruction that we had with the paper 2 over there in the last class. But the total marks for this paper is 130. And the time is 2 hours 30 minutes. Let's start the paper. We have question number 1. In question number 1, the diagram shows an isosceles triangle with the base extended. Find the value of x. So they have given you an isosceles triangle. Isosceles triangle में बेटा जो sides equal होती हैं उनके opposite angles are equal. Let's say if this angle is y, this angle is also going to be y. So if I want to find out the value of y, I'm going to subtract. See if we can do this working y plus 42 is equals to 180. Sum of interior angle of the triangle is 180. And then we're going to get the value of y, which is 2y 180 minus 42. 180 minus 42 is 138. And you'll get the value of y, which is, after dividing by 2, you'll get 69. But actually, you don't need the value of y. Y is your own variable. With the help of y, I'm going to get the value of x. So देखो, angle in a line is 180 degree. So 180 minus 69 is 111. The answer for this x value is 111. The value of x is 111 here. In part B, says the diagram shows 3 lines meeting at a point A ratio B ratio C. Find the value of C. So thing is, these are the angles ratios. और आपको पता है angle at a point, sum of the angle at a point, sum of these all angle is 360. So what is the sum of the ratio of these all angle? 3 plus 4, 7. 7 plus 5 is 12. This is the ratio of sum of the all angle. And sum of the all angle is 360 degree. What is the ratio of C? The ratio of C is 5. And the value is C. So over here I've made 2 columns. जहां पर बेटा मैंने पहले में ratios लिखे हैं और दूसरे में value लिखी है. तो total ratio, total value sum of the angle कितना होता है? 360 degree. और C, इसकी value, this value over here, and the ratio of C is 5. I'm going to cross multiply these values and I'm going to get the value of C, which is 12 into C, 360 into 5. 12 ones are 12 3 are 30, 360. The value of C is going to be 30 into 5, that is 150 degree. So I'm going to write this answer over here, 150. In part C, it says a regular pentagon has an exterior angle D. A regular hexagon has an interior angle H.
फाइंड अ फ्रैक्शन, गिव योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है डी ओवर एच का फ्रैक्शन निकाल कर दिखा दें। तो देखो ये दोनों रेगुलर की बात कर रहे हैं, बोथ आर रेगुलर पेंटागन एंड हेक्सागन। पेंटागन हैज 5 साइड्स, हेक्सागन हैज 6 साइड्स। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन, तो देखो ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला इज 360 upon n. So each exterior angle over here is d in the pentagon. The number of sides is 5 over here. In pentagon we have 5. So instead of n I've put 5 over here, और each 360 upon 5 each exterior angle को represent कर रहा है, और d भी each exterior angle को represent कर रहा है। रेगुलर है ना, तो ये सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक एक्सटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू डी ही होगी। तो 360 डिवाइड बाय 5, it is going to be 72. So value of d is 72 here. Similarly, each exterior angle formula is n minus 2 multiplied by 180 upon n. Over here, regular hexagon, we have n value 6 and each exterior angle is h. Since it is regular one, तो सिर्फ बेटा ये एक इंटीरियर एंगल का, सिर्फ एक इंटीरियर एंगल को h नहीं कह रहा। अगर ये रेगुलर है तो हर इंटीरियर एंगल h होगा। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, each exterior angle is h, n is 6. So 6 minus 2 is 4, 4 multiplied by 180 divided by 6. The value of h is 120. I'm going to take the ratio. (72 divided by 120), it is going to be 3 by 5. यहाँ रेशो निकल कर आ गया। Now in part D it says show that the PQRS is a cyclic quadrilateral. So thing is, in cyclic quadrilateral, first thing first, let's just leave the cyclic quadrilateral aside. पहले आप x की वैल्यू निकालो यहाँ पर। We have this quadrilateral, quadrilateral के एंगल का सम is 360 डिग्री। तो देखो x plus 3x, it is 5x, 5x plus 2x, 7x. So then 20 minus 40 minus 5, it's minus 25. 360 plus 25 divided by 7. The value of x is 55. So now that we got the value of x 55, you can put 55 here. X plus 20, 55 plus 20 is 75. 2 multiplied by 55 minus 5, it is 105. Or 3 multiplied by 55 minus 40, it is 125. अगर ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है, then 55 plus 125, sum of the opposite angle is supplementary. Opposite angle क्या है? Supplementary. हमें ये शो करना होगा। हमने शो कर दिया। ठीक है जी। In this part they are saying
The diagram shows a circle of radius 9 centimeter. Center O. The minus sector of AOB with angle 50 is removed from the circle. Get the length of the major arc of the AB. Now this one is the length of the major arc. So how are we going to calculate it? First, you're going to find out the angle of the major sector. 360 minus 50, which is 310. So what is the length formula? Angle divided by 360 multiplied by 2 pi r. Radius is 9. I'm going to simplify it further. 310 divided by 360 is 31 by 360 multiplied by 2 multiplied by pi multiplied by 9, 48.69. 48.7 centimeter. Anil changes $830 into euros. In question number 2, it says Anil changes $830 into euros. When the exchange rate is 1 euro equals to $1.16. He spent 500 euros. He then changes the remaining money back into dollars at the same exchange rate. Work out how much in dollars Anil receive. तो देखो सबसे पहले तो इनिशियली उसके पास डॉलर्स और यूरोस में अगर हम बात करें तो 830 डॉलर्स को यूरोस में कन्वर्ट करना है. अगर एक यूरो 1.16 डॉलर्स के बराबर है. So I'm going to cross multiply these values. X multiplied by 1.16, 1 multiplied by 830, 830 divided by 1.16. बेटा आपके पास आ जाएगा 715.52 here. And then again I'm going to subtract 500 from here because ये तो डॉलर, ये तो हमारे पास क्या है, यूरोज है ना. These are euros. तो अब उसने 500 यूरो स्पेंड कर दिए. $715.52 में से 500 यूरो निकाल दिए उसने. कितना बन गया ये? अब ये लेफ्ट ओवर है, उसको वापस से कन्वर्ट करें. वापस से डॉलर्स में कन्वर्ट करना है. हमें नहीं पता कितने डॉलर्स में होंगे, उसको मैंने एक्स कह दिया. लेकिन एक्सचेंज रेट यही है कि 1 यूरो बराबर है 1.16 के. 215.52 मतलब 1.16, 1 मतलब एक्स, क्रॉस मिला कर आया बेटा. तो हमारे पास एक्स की वैल्यू $250 बेटा हमारे पास निकल कर आ रही है. कि आपके पास जब उसने $500 यूरोस खर्च करने के बाद वापस से जब कन्वर्ट करा यूरोस में, डॉलर्स में कन्वर्ट करा, तो इट इज $250 आफ्टर spending 500 euros. Now in part B it says in 2021 Anil received $3,700. He spent $1 to $400 on bills in 2021. Calculate percentage of his earning he spent on the bills. तो बिल्स में कितनी अमाउंट जा रही है? 12,400 डिवाइड बाय द टोटल अमाउंट कितनी थी? 3,700. उसके बाद इसका परसेंटेज निकालना है. वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू.
is 33.51. तो बेटा इसको हम 3 सिग्निफिकेंट में लिखेंगे 33.5% उसका अर्निंग बिल्स पे जा रहा है. इस अर्निंग ऑफ $37,000 increased by $3.12, 3.2% in 2022. Calculate his earning in 2022. देखो 2021 में और 2022 की बात करते हैं हम लोग. 2021 में जो वैल्यू थी वो थी 3700 और इनिशियल वैल्यू हमेशा 100% अमाउंट होती है, दैट इज 100% अमाउंट. अब बेटा ये अमाउंट 2022 में बढ़ गई, कितनी हुई मुझे नहीं पता, लेकिन परसेंटेज वाइज 3.2% बढ़ गई. तो आई एम गोइंग टू ऐड 100 over here, so become 103.2% उसकी 2022 में अमाउंट हो गई. आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दीस वैल्यूज. I'll get the amount X value as 38184. तो देखो 2022 में बेटा उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी आफ्टर 3.2% इंक्रीज. 103.2% अमाउंट की कितनी हो जाएगी 38184. दिस इज द अमाउंट दैट इज that he is going to receive as his earning in 2022. Now in part C says Anil invests $3,500 in an account that pays a rate of 2.54% per year compound interest. Calculate total interest earned at the end of 5 years. The compound interest formula is I is equals to P into 1 plus R over 100 की power n. Now this A over here is not an interest amount. इसमें interest plus principal amount दोनों होती है. तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी हो गई, so we have got this principal amount that is 3500, that is invested. The invested amount is the principal amount, rate is 2.4 and n is 5 over here. I'm going to put this value in the calculator. So the final amount is going to be 3940.64. Now this is the amount जिसमें बेटा इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों शामिल हैं. So if you just need the interest amount, see they just need the total interest. So I'm going to subtract 3500 from here. And we're going to get the value 440.64. अमाउंट डॉलर्स में तो सेंट्स तक हम लोग 2 डेसिमल प्लेस में आंसर दे रहे हैं ताकि सेंट्स तक कहानी चले जाए. वरना अगर आप 3 सिग्निफिकेंट में अभी आंसर देना चाहते हैं तो 3 सिग्निफिकेंट में इट इज गोइंग टू बी, यू कैन आल्सो राइट द आंसर इन $441. तो ना उसने इस तरह भी आप आंसर दे सकते हैं into 3 significants. Find a number of years before Anil has at least 5,000 in this account. कह रहे कितने साल, कह रहे नंबर ऑफ इयर्स बताएं कितने साल में एटलीस्ट $5,000 तो उसके अकाउंट में हो जाए, कितने साल में. तो देखो यहां पर we can use the hidden trial method कि A बराबर है 3500 into 1 plus 2.4 upon 100. तो यहां पर बेटा n की वैल्यू लेट जस्ट हिडन ट्रायल इट कि आप यहां पर खुद से n की वैल्यू पुट करो एंड जस्ट ट्राई इट आउट इन द कैलकुलेटर.
लेट्स से आप यहां पर एन की वैल्यू एक गलत शो कर दो, लेट्स से 3500। अगर आप स्टार्टिंग से देखो 1+, देखो 5 साल में यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ 440। तो 5000 तक जाना है, अगर 3500 से 5000 से जाना है तो एटलीस्ट 15 साल तो लगेंगे। पता चल रहा है यहां पर 2.4 डिवाइड बाय 100। मैंने एन के लिए 15 रखी है यहां पर। सो द अमाउंट, नॉट जस्ट द इंटरेस्ट बट द अमाउंट इन द बैंक आफ्टर 15 years आई एम गेटिंग 4995। देखो करीब करीब आ रहा है। 5000 क्रॉस करना है तो देखो मैं इनके 16 पुट कर रहा हूँ। इट मीन्स द एन इज गोइंग टू बी 16 हियर, कि 16 साल बाद एटलीस्ट उसके अकाउंट में आफ्टर 16 years he will at least have $5000 in his account. Then question number 3 it says the diagram shows the right angle triangle ABC. The area of the triangle is 60 centimeters square. They have given us the hint for the triangle which is 60 centimeters square. The area of the triangle is 60 centimeters square. So I'm going to use the same hint, half base into height, the area which is equal to 60 over here. I'm going to multiply these values. पहले 2 को right hand side पे multiply करा दें. 2x multiply, this 2 is going to be multiplied with the 60 over here, so it becomes 120. And after multiplication of these two brackets, I get 2x square 11x 15 minus 120. 20 is going to be on the left hand side, it becomes 105. तो देखो बेटा एट दी एंड यू गोना गेट द सेम इक्वेशन जो उसने शो करने के लिए कही हुई थी, with the help of the hint that is they are given to you in the question. Now solve by factorization. देखो यहाँ पर factorization कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन बोल दी उसने तो हमें फैक्टराइजेशन करनी है फिर, है ना? सॉल्विंग हमें फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म से नहीं कर सकते हम लोग। तो हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? हम 2 को मिडिल में -105 करेंगे। ये हो जाएगा 200 -210। नाउ वी आर गोइंग टू आस्क अवरसेल्फ कि कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मिला करना है तो -210 आए और ऐड करें तो 11 आए। व्हाट आर दोस टू नंबर्स? तो दोस टू नंबर्स आर गोइंग टू बी 21 मतलब 10 और 21 प्लस 10। 21 प्लस 10 तो बेटा हमारे पास 31 होता है। देखो मैंने -21 करा तो -21 मतलब 10 इज -210 -21 प्लस 10 इज, ये तो +11 आ रहा है, हमें तो -11 चाहिए। तो देखो मैंने माइनस यहां से फिर यहां पर शिफ्ट कर दिया। इट मींस माय मिडिल टर्म इज गोइंग टू बी ब्रेक into 2x square plus 21x minus 10x minus 105 equal to 0. So I got x common here. So the बचा 2x plus 21. I got -5 common here. I got 2x plus 21 here. So I got two brackets 2x plus 21. X minus 5 equal to 0. So beta either 2x plus 21 is equal to 0 or x minus 5 is equal to 0.
You got two values of x, which is 21/2 and this is 5 over here. 21/2 को माइनस 10.5 पे लिख दें, कोई मसला नहीं है. Calculate the angle ACB. They want to ask what is this angle ACB. हमें ऑलरेडी बेटा एक्स की वैल्यू निकाली हुई है. ठीक है ना. वन इज माइनस 10.5 एंड अदर वन इज 5. माइनस 21/2 को आप माइनस 10.5 भी कह सकते हैं. देखो कौन सी वैल्यू यहां पर एक्सेप्ट करें हम लोग, 5 और -21/5, -21/2, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करें. देखो अगर मैं -21/2 यहां पर रखता हूं एक्स की जगह, तो ये लेंथ नेगेटिव में आएगी और ये लेंथ भी नेगेटिव में आ जाएगी. तो वी कैन डू इग्नोर दिस वैल्यू. हम एक्स की 5 रखेंगे, तो 5 + 3 is 8. 2 5 are 10. 10 + 5 is 15 here. If I want to calculate this angle, tan theta opposite over adjacent, I'm going to take the inverse of here. Tan inverse 15/8. It is 61.92. So into one decimal place, it is going to be 61.9. Triangle ABC in part B says triangle ABC is similar to triangle DEF. Triangle DEF has an area of 93.75. Find the size of the smallest angle of triangle DEF. अब देखो यहाँ पर we have this triangle ABC. देखो this is triangle ABC in the previous part. So this triangle ABC is similar to DEF. DEF is a triangle, I don't know about triangle. मुझे नहीं पता वो ट्राइंगल कहां पर है, कैसा है. ठीक है ना. लेट्स से वो ट्राइंगल मैं यहां बना देता हूं. वो इससे छोटा ट्राइंगल है. लेट्स से इसका एरिया कितना था, 60. वो इससे बड़ा ट्राइंगल होगा क्योंकि इसका एरिया छोटा है, उसका एरिया ज्यादा है. तो समझो डी ई एफ इज दिस ट्राइंगल ओवर हियर. बोथ आर सिमिलर. लेट्स से बोथ आर सिमिलर. इफ बोथ आर सिमिलर, तो बेटा दोनों के ट्राइंगल के एंगल्स बराबर होंगे. जैसे यहां पर 90 डिग्री है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये एंगल भी हमारे पास जो निकल कर आएगा सेम ही एंगल होगा. कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल डीईएफ. तो भाई जो इसका स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो भी इसका भी स्मॉलेस्ट एंगल वही होगा. एंगल सिमिलर ट्राइंगल्स में बराबर ही होते हैं. तो 180 - 90 माइनस दिस थीटा 61.92, so it is 28.08. The smallest angle 180 - 90 minus smallest angle आ गया. Find the length of the shortest side of the triangle. अब देखो यहां पर आपके पास ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज शॉर्टेस्ट साइड नहीं होती, पहली बात. तो अगर ये सिमिलर भी हैं तो इनके लिए बेटा ये दोनों शॉर्टेस्ट साइड नहीं है. दीज आर नॉट टू शॉर्टेस्ट साइड्स. अब शॉर्टेस्ट साइड हो सकती है तो कौन सी हो सकती है, दिस ए सी एंड डी एफ. तो अगर मुझे इसकी शॉर्टेस्ट साइड चाहिए ये वाली, and we just know this side over here, we don't know this side over here, and we know the areas. याद रखो जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, उनके एरिया का रेशो बराबर होता है. एरिया ऑफ डीईएफ, एरिया ऑफ एबीसी, इनकी किसी भी साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर हो जाता है.
तो एरिया ऑफ डीईएफ कितना है 93.75. एरिया ऑफ एबीसी कितना था 60. फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट इट वाज 60. डीईएफ की लेंथ जो आपको निकालनी है, ऑब्वियसली डीएफ शॉर्टेस्ट साइड होगी इसकी कंपैरेटिवली, और L2 AC इसकी शॉर्टेस्ट साइड विच इज 8. What I'm going to do, I'm going to take the square root first. तो देखो राइट हैंड साइड से स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग कैंसिल हो गई. एट द एंड अंडर रूट 93.75 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 8. तो बेटा डीएफ की वैल्यू यू आर गेटिंग 10 over here. This 10 is going to be the smallest side. Then question number 4, it says the table shows information about the height of 80 children. Write down the interval containing the median. Now, how do we find the median? These are 80 children. The position of the median is going to be n plus 1 upon 2 position. So it is going to be 80 plus 1 upon 2 position. So 81 divided by 2 is 40.5. Now you can say 40.5 can be divided into two parts, 40 and 41. So which class has the position 40 and 41? The first class is reserved by 2. Till second class, we have 2 plus 13, 15 position reserve. Till third class, we have 2 plus 13 plus 24. We have 39 position reserve. Until fourth class, how many values are reserved? 39 plus 32, that is 71. So it means after 39, we have this class जिसमें बेटा 40 से लेकर 71 positions are reserved. So we need the class which has a 40 and 41 position. So this is the class which has a 40 and 41st position. So I'm going to write 1.65 till 1.8. The fourth class has a median in it. Now they are asking for the estimate the mean height. For the mean height, the sum of the formula, the mean formula is sum of fx divided by sum of f. This is the formula for the group value. You got the frequency f. What is the value of x? The value of x is the midpoint of 1.2 and 1.4. 1.4 and 1.5 mid is 1.45. 1.5 and 1.65 mid is, अच्छा mid निकालते कैसे हैं? 1.5 plus 1.65 plus 1.65 divided by 2. 1.575. 1.65 plus 1.8 divided by 2. 1.725. 1.8 plus 1.9 divided by 2. 1.85. These are the mid values. If you want to take out the mid values, add these two values, 1.2 plus 1.4, whatever the answer is, divided by 2. So you got the mid values. Now we are going to write this sum of fx. The mean value is f, frequency is 2 over here. Let's just remove this for now. 2 multiplied by 1.3 plus 13 multiplied by 1.45 plus 24 multiplied by 1.575 plus 32 multiplied by 1.725 plus 9 multiplied by
1.85 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ. सम ऑफ एफ कितना है हमारे पास? 80 है. देखो यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज सम ऑफ एफ, दैट इज 80. अब इस पूरे को कैलकुलेटर में रखोगे, देखो सम ऑफ एफ एक्स हो रहा है. तो यहां पर देखो सम ऑफ एफ एक्स कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 1.45 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 1.575 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 1.715 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1.85 डिवाइड बाय 80. सबको कैलकुलेटर में रखा. आई गॉट द मीन वैल्यू 1.63475. पूरा ही लिख दिया मैंने. और अप टू 3 in figure इट इज गोइंग टू बी 1.63. ये आपके पास बेटा मीन वैल्यू निकल कर आ गई. One of these children is student random. Calculate the probability that they have the height of 1.4 meter or less. कह रहे एक बच्चा चूज कर रहे हैं, कैलकुलेट करें प्रोबेबिलिटी के उसकी हाइट 1.4 हो या उससे लेस हो. तो हमारे फेवर में 1.4 और उससे लेस वाले बच्चे कितने हैं? 2 हैं. सो 2 डिवाइड बाय 80. 2 डिवाइड बाय टोटल बच्चे कितना हो गया? 80. दैट इज योर फिगर, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी. 1 डिवाइड बाय 40 इज गोइंग टू बी द आंसर. Two of these children are chosen at random. Calculate the probability that both children are taller than 1.5, but only one of them is taller than 1.8. अब देखो डेटा को अगर आप गौर से देखें, हमें 2 चिल्ड्रन चूज करने. बोथ चिल्ड्रन आर टॉलर देन 1.5. अब टॉलर देन 1.5 कितने चिल्ड्रन हैं? जरा गौर से देखें. यहां पर मैं जरा सा रिमूव कर देता हूं. बोथ चिल्ड्रन आर फ्रॉम दीज ग्रेटर देन 1.5 हाइट. क्योंकि देखो ये भी ग्रेटर देन 1.5 है, ये भी ग्रेटर देन 1.5 हाइट वाले हैं, ये भी ग्रेटर देन 1.5 हाइट वाले बच्चे हैं. तो इन 80 चिल्ड्रन में से 2 बच्चे चूज करने जो कि ग्रेटर देन 1.5 हाइट से हो, बट उनमें से एक ऐसा हो जो कि ग्रेटर देन 1.8 मीटर का हो. इसकी हाइट ग्रेटर देन 1.8 मीटर. तो वो बच्चे कितने हैं जो ग्रेटर देन 1.8 है? वो है 9 बच्चे. तो एक बच्चा जो है ना वो बेटा ग्रेटर देन 1.8 मीटर की हाइट पर हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा हमारे पास कितनी हो जाएगी? 9 बाय जो बच्चा जिसकी प्रोबेबिलिटी वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन इज टॉलर देन 1.8 मीटर. तो टॉलर देन 1.8 मीटर वाला बच्चा, हाउ मेनी ऑफ दीज आर देयर? 9 आउट ऑफ 80. एंड द अदर शुड बी टॉलर देन 1.5. तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, हाउ मेनी ऑफ देम आर टॉलर देन 1.5. सो 24 प्लस 32, दिस इज 56. मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं टॉलर देन 1.5 में, क्योंकि बेटा एक यहां पर तो सेलेक्ट हो चुका है. अगर मैं टॉलर देन 1.5 में इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि दोनों ही 1.8 मीटर से टॉलर वाले बच्चे आ जाएं. इसीलिए दूसरा बच्चा मैं यहां से चूज कर रहा हूं. 28 24 प्लस 32 विच इज 56. and it is going to be an obvious case of without replacement, so it is going to be 56 by 79. and we can have the vice versa case as well. यानी पहला बच्चा ऐसा हो जाए जो टॉलर देन 1.5 हो और दूसरा बच्चा ग्रेटर देन टॉलर देन 1.8 हो. तो पहला बच्चा टॉलर देन 1.5 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 56 by 81.
दूसरा बच्चा टॉलर देन 1.8 उसकी प्रोबेबिलिटी 9/79. So we are going to add these two values after multiplication. तो 9 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 79, ये हो गया 63/790. We are going to add these two values. We get 63/395. ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है बेटा, हमारे पास एक बच्चा ग्रेटर देन 1.54 और दूसरा ग्रेटर देन 1.8 हो. ठीक है ना. बट मैंने ये मेक श्योर करा जब मैं ग्रेटर देन 1.5 का यूज कर रहा था तो मैंने सबको नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं इसको भी पिक कर लेता, इधर से भी पिक कर लेता, ये भी फेवरेबल बना देता, तो बेटा हमारे पास वन ऑफ देम इज टॉलर देन 1.8 चाहिए था ना उनको, वरना दोनों ही टॉलर देन 1.5 1.8 आने के चांसेस थे. इस वजह से बेटा मैंने उसको सिलेक्ट नहीं करा. Let's say complete the completed frequency table. See, less than 1.5 we have two frequency. Less than 1.4 देखो हमारे पास दो ही लोग हैं, पर less than 0.5 we have 2 plus 13 which is 15 people. तो यहां पर देखो मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल इसी ना बनता है, ये जगह 15 ओवर हियर. Less than 1.65 I have 24 plus 13 plus 2. तो 24 में 15 ऐड कर दो, क्योंकि आप लेस देन 1.5 तो आपको पता है ना कितने लोग हैं, 15 है. तो 15 plus 24 करो, you get 39 over here. Less than 1.8, how many people are there? These are the people less than 1.8. तो less than 1.65 तक तो आप निकाल चुके हो, उसमें बेटा 32 ऐड कर लो. Less than 1.65 पर हमारे पास कितने 39 वैल्यूज हैं. Just add 32 over here, you get 71. And less than 1.9 we have all these values. तो less than 1.8 तक निकाल चुके हो, 72 है, 71 है, उसमें 9 ऐड कर लो. वैसे लास्ट वैल्यू वही आती है जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, which is 81 over here, 80 over here, यहां पर 80 आ जाएगा. Now we have to draw this cumulative frequency diagram. किस तरह ड्रॉ करेंगे? देखो ये हमारे पास x वैल्यू जाती है, दिस इज y वैल्यू. तो मैं इसको चलो इस तरह ऑर्डर पे की फॉर्म में लिख देता हूं. ये जाएगा 1.4, 2, 1.5, 15, 1.65, 39, 1.8, 31, 1.9, 80. सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. तो देखो ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स आपको पता होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन आसानी हो जाए. ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स, देखो y एक्सिस में हमारे पास क्या है, 5 boxes आर डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स. डिफरेंस कितना है 10 का, तो 5 डिवाइड बाय 10, एक बॉक्स 0.5 यूनिट के बराबर हो, सॉरी 10 इज डिवाइड बाय 5 बॉक्सेस, तो एक बॉक्स 2 यूनिट्स के बराबर हो गया. और y एक्स एक्सिस में व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज 1.3 माइनस 1.2, डिफरेंस 0.1 है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, तो इट इज 0.01. एक टाइनी स्मॉल बॉक्स 0.01 के बराबर है. तो अगर वो आपसे कहता है भाई 1.4 के अगेंस्ट प्लॉट 2, देखो 1.4 के अगेंस्ट 2 ये रहा, एक टाइनी स्मॉल बॉक्स 2 के बराबर है, तो पहला ही बॉक्स मैंने यहां पर क्लिक कर लिया, 1.4 के अगेंस्ट 2 मैंने क्रॉस टिक करा है. 1.5 के अगेंस्ट 15 है, 1.5 ये रहा, इसके अगेंस्ट बेटा 10 और 20 के बिंड में देखो हमारे पास ये 15 मैंने लगा दिया यहां पर. इससे पहले 14 होगा, इससे बाद 16 होगा. देन वी हैव 1.65 के अगेंस्ट 39, तो देखो 1.65 ये रहा, दिस ओवर हियर इज द मिड ऑफ, दिस इज 1.65. इसके अगेंस्ट क्या है 39 है, so 39 is going to be just right below 40. तो अगर मैं एक बॉक्स नीचे आता हूं तो बेटा 38 हो जाएगा. ये यहां पर 40 तो यहां पर 38 हो जाएगा, मिड में ले आया तो बेटा 39 हो गया. 1.8 के अगेंस्ट 71, तो देखो ये 70 हो गया, ये 72 हो गया, ये 71 यहां पर हो जाएगा. 1.9 के अगेंस्ट 80,
9 से 80 हो गया. देखो, आई एम गोइंग टू ड्रॉ ज्वाइन दीज टू these points. मेक श्योर आप क्रॉस चेक करें. पेंसिल को जरा बैक एंड से पकड़िएगा ताकि बेटा वन गो में बना सकें आप. इसको मैं जरा सा स्लिप हो रही है मेरी पेंसिल क्योंकि होल्डिंग ऑन डिवाइस. तो somewhere around a curve like this, और फिर आप इस कर्व को 0,0 से भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, इस कर्व को 0,0 से ज्वाइन कर लें या आपके पास पूरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आ जाएगा. अब देखो बेटा, आपके पास यू नीड टू ड्रॉ एस्टिमेट अ डायग्राम ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज. इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालना है. इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है? IQR इसको भी कहा जाता है. दैट इज Q3 minus Q1 वैल्यू. सो हाउ डू वी कैलकुलेट द Q3 और Q1? Q1 की पहले इनकी पोजीशन निकालना है आप. Q1 की पोजीशन होती है बेटा 1/4 ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज 80 ओवर हियर. एंड Q3 की पोजीशन होती है 3/4 ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज 80 ओवर है. तो यहां पर 1/4 ऑफ 80 20 हो गया और 3/4 ऑफ 80 बेटा 60 हो गया. तो देखो 20 के अगेंस्ट the value against 20 and the value against 60, you need to find out these values. इसके लिए बेटा मैंने यहां पर you need to know the each what is the value of each tiny small box in the x axis. तो देखो यहां पर 1.5 के बाद you got 3 boxes. It is going to be 1.53 और ये जगह you got 3 boxes 1.73. So difference of these two values is going to be your interquartile range. So I'm going to write 1.73 minus 1.53, which is equal to 0.2. So 0.2 is going to be your interquartile range. Okay, now they are asking for the 68th percentile. How do you calculate the 68th percentile? 60 divided by, first you're going to find out the position. And how you're going to find out the position? 60 divided by 100 multiplied by total frequency, which is 80 over here. So 60 or 0.6 of 80 is 48. You're going to find out the value against 48. This is 48. The value against 48 is over here. So 1.65 था ये, 1.66, 1.67, 1.68. So 1.68 is going to be a 68 percentile. ये आपके पास वैल्यू निकल कर यहां पर आ गई. अच्छा बेटा, cone has a base diameter of 8 centimeter and perpendicular to the height 15 centimeter. This is question number 5 part A. Calculate the volume of the cone. So this is the formula for the volume of the cone. They have already given us a formula. We know the radius. Radius is 4. This is the diameter. 8 divided by 2 is 4. And height is 15, already given in the question. Just put it in the calculator and find out the answer. 1/3 multiplied by pi multiplied by 4 into 4 square into 15 is 80 pi, which is 251.32. So 251 is going to be your volume over here. मैंने इसको 3 figure में round off कर दिया. In part 2 it says a label completely covers the curved surface area of the cone. So this is the cone over here. There's a label that completely covered the surface area, curved surface area of the cone. Calculate the area of the label
as a percentage of total surface area. So the curved surface area of the cone is pi r L, already given in the question, and the base area is the circular area, that is pi r square. Now this will give you total surface area. We need to find out the label surface area. Now the label surface area is going to be equivalent to this curved surface area, क्योंकि आपका लेबल जो है ना इस कर्व सरफेस एरिया को कवर कर रहा है. So label surface area is going to be equal to curved surface area. We need to find out the label surface area as a percentage of total surface area of the cone. So first we need to find out the total surface area or the curved surface area, and for that we need one more component, which is L over here. This is the slant length. The slant length of the cone is this one that we don't know. We know the height, which is 15. We know the radius, which is 4. So I'm going to use the Pythagoras theorem to find out the length. L square is equal to 15 square plus 4 square. Pythagoras theorem. L is going to be 15 square plus 4 square under root. It is root 241. Okay, now. So what I'm going to do, I'm going to find out the value of curved surface area, 4, radius, root 241. 4 square is 16 pi. Now what is the percentage of the label surface area? That is equivalent to curved surface area. So 4 pi root 241 curved surface area divided by total surface area, which is 4 pi root 241 plus 16 pi. That is how you're going to calculate the label surface area. This is the label surface area. Or you can say the curved surface area, both are equivalent. Okay. We are going to multiply this answer by 100. We'll get the answer 79.51. So 79.5 in 3 sin figures is going to be your percentage over here. In part B, it says an empty cylinder container has radius 0.45 meter. 300 liters of pure water is poured into the container at a rate of 375 milliliter per second. Find the time taken in minutes and seconds for all the water to be poured in the container. So see, it is the empty cylinder that has a radius of 0.45. 300 liters of water is poured into a container at a rate of 375 milliliter per second. See, this is the volume, 300 liters. Volume rate, this is the volume rate. ये देखो आपको 375 मिलीलीटर पर सेकेंड पानी कंटेनर के अंदर जा रहा है. तो 375 is the volume per second. That is called volume rate. So volume rate is volume divided by time. We know the volume rate, which is 375 milliliter. We know the whole volume that should be poured into the container. The whole volume is 300. And how much time it will take? We don't know. We're going to write time over here. So this over here is in liter. You need to make sure that your answer, that your value should be in the same unit. Either you convert this milliliter into liter or liter into milliliter. First, मैं time को यहाँ पर ले आता हूँ. Now 300 liter is going to be divided by 375 milliliter. So if you just multiply this value by 1000, you'll get it into a milliliter.
तो बेटा ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 300,000 मिलीलीटर डिवाइड बाय 375 मिलीलीटर. It is 800. Now what is the unit of time over here? Since देखो बेटा मैंने यहां पर वॉल्यूम रेट जो यूज करा था ना, इट वॉज 375 मिलीलीटर पर सेकेंड. तो देखो यहां पर सेकेंड था ना वो, तो एट द एंड बेटा ये टाइम भी सेकंड में आएगा. वी हैव टू गिव द आंसर इन सेकंड्स एंड मिनट्स. सो 800 सेकंड्स के अंदर कितने मिनट्स होंगे? 800 डिवाइड बाय 60 करा, यू गॉट 13 मिनट्स. 30 into 60 is 780 minutes. इसका मतलब 20 seconds बच जाएंगे. The answer is going to be 30 minutes and 20 seconds. Calculate the height of the water in the container. What is the height of the water in the container? तो देखो बेटा आपके पास the volume of the container of the water, देखो पानी अगर इसके अंदर जाएगा तो पानी भी it is going to be shaped like a container. So volume of the water is going to be pi r square h. If the whole volume, if the whole 300 liters is poured into the container, the volume is equal to 300 liters. अब देखो यहां पर over here the radius is 0.45 meters. Height we don't know. अब देखो यहां पर we are going to convert this liter into milliliter. या फिर बेटा you're gonna have this unit conversion, या तो आप 0.45 मीटर को कन्वर्ट कर दें. इट शुड बी अ सेम यूनिट, यूनिट सेम होना चाहिए हमारे पास. तो बेटा इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस 300 लीटर, I'm converting it, I'm multiplying this value, this 300 by dividing it this value by 1000, ताकि बेटा ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए. किसमें, कौन से मीटर में कन्वर्ट हो जाए? क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो जाए. तो ये जगह 0.3 मीटर क्यूब. आपके पास देखो अब यूनिट सेम हो गए. योर रेडियस यूनिट इज 0.45 मीटर और ये देखो 0.3 मीटर क्यूब. ये आपके पास वॉल्यूम आ गया, लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया. यूनिट्स आर सेम. Only thing that we need to find out is height. 0.3 divided by 0.45 square into pi. H को मैंने सब्जेक्ट बना लिया. पे आगे बेटा हाइट आ गई 0.4715 472. ये बेटा आपके पास अप्रोक्सीमेट हाइट निकल कर आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग अ सीक्वेंस हैज द nth टर्म, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. तो बेटा n की जगह इफ यू पुट 1 यू विल गेट द फर्स्ट टर्म. 1/2 into 1 plus 3, it is 1/5. n या 2 पुट करूंगा 2/7. 3 पुट करेंगे 3/2 3 द 6. इसको मैं यहां पर कर देता हूं. 6 + 3 9. 3/9 इज 1/3. अगर आप 1/3 भी लिख दोगे कोई इशू वाली बात नहीं है. सही है ना. तो यू गॉट ऑल दी 3 टर्म्स. n गया 1 रखा, n गया 2 रखा, n गया 3 रखा. यू गॉट द 3 टर्म्स.
The k term of the sequence is 12 by 25. देखो what is the k term by the question? n की जगह k रख दूंगा, I'll get the k term. और उन्होंने k term दी हुई है 12 by 25. So I equate these two values. 25 into k, 12 into 2k plus 3. 25k, 24k, 36. k की वैल्यू बेटा 36 आ गई. k इज अ नॉन कांस्टेंट, की कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है. तो हमने हमारी k टर्म और उनकी k टर्म को आपस में इक्वेट कर दिया. Now they are asking find the nth term of each sequence. तो देखो आपके पास यहां पर यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी सीक्वेंस है. यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस. तो देखो क्या इनके दरमियान डिफरेंस 6 minus 13 minus 6. What is the difference? The difference is 7. What is the difference over here? 32 minus 13. That is 19. 69 minus 32. That is 37. 130 minus 69. It is 61. The difference are not common. तो ये बेटा लीनियर सीक्वेंस तो नहीं हुई. मैंने वापस से डिफरेंस निकाला 19 minus 7. It is 12. 37 minus 19. Is it 18? 61 minus 37. It is 24. अभी भी डिफरेंस सेम नहीं है. मैंने वापस से कॉमन डिफरेंस निकाला, ये आ गया 6, ये आ गया 6. तो देखो अगर आपके पास थर्ड डिफरेंस सेम आ रहा हो, then that sequence is called cubic sequence. That sequence is called cubic sequence. अब बेटा cubic sequence का we are going to use a formula for the cubic sequence here now. So cubic sequence formula is an cube plus bn square plus cn plus d. This is the nth term for the cubic sequence. So how do we find out the value of a, b, c, d? These are unknown constant. तो देखो थर्ड डिफरेंस को हम लोग 6a के बराबर रखते हैं. सेकंड डिफरेंस की फर्स्ट टर्म को हम इसको 12a plus 2b के बराबर रखते हैं. और फर्स्ट टर्म के डिफरेंस को बेटा हम लोग 7a plus 3b plus c के बराबर रखते हैं. और वेरी फर्स्ट टर्म को बेटा हम लोग रखते हैं a plus b plus c के बराबर प्लस d equals to 6 के बराबर. At the end 6a equal to 6. From here we get the value of a which is 6, which is 1. अगर आप a की जगह यहां पर वैल्यू 1 डाल देंगे, 12 into 1 12 हो गया. 12 into 1 plus 2b equals to 12. 12 से 12 कैंसिल, b की वैल्यू यहां से 0 आ रही है. From here I am getting the value of b 0. सही है ना. मैं यहां पर चलो 12 into 1 plus 2b equals to 12. ये कैंसिल हो गया. 2b की वैल्यू बेटा we get 0. तो b की वैल्यू 0 आ गई. So we get the value of b 0. अब बेटा ये b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1. Just put it over here. देखो क्या बन जाएगा. 7 1 7, 300 plus c equal to 7. 7 से 7 कैंसिल, 30 0, c की वैल्यू भी 0 आ गई. You get the value c0, b0, a1, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी. 1 plus 0 plus 0 plus d equals to 6. तो 6 minus 1, d की वैल्यू 5 आ जाएगी. I'm going to put all these values here. a की वैल्यू 1, n क्यूब, b की वैल्यू 0, n स्क्वायर, c की वैल्यू 0, n और d की वैल्यू बेटा 5.
n cube plus 5 is the nth term of each sequence, of the sequence. Then it says we have 100 के बाद 50. अब देखो उसके हाफ ऑफ हुए जा रहे हैं ये. So if we divide 100 by 2, we get 50. 50 divided by 2, 25. 25 divided by 2 is 12.5. और you can say कि 100 को मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 करूं, you get 50. 50 को मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 करूं, you get 25. 25 को मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 करूं, 12.5. 12.5 को मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 करूं, you get 6.25. इस सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. इसका टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1. व्हाट इज ए? ए इज द वेरी फर्स्ट टर्म. व्हाट इज आर? R is 1 by 2. This value 1 by 2 is constant throughout. Power n minus 1. So this is going to be our nth term for this formula. 100 into 1 upon 2 की power n minus 1. यूं कर लें आप. This is the nth term formula for the sequence. In question number 7, it says, show we have this triangle. The diagram show the straight roads between A and town B and C. AC 60 km, CB 87. B is due east of A. देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. B is due east of A. A के ईस्ट पर B है. It means this angle, this is north. So this angle is 90 degree. अगर मैं आपसे बोलूं ना ये एंगल क्या है, अभी मुझे नहीं पता आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. अगर मैं पूछूं ये एंगल क्या है, तो दिस इज 90 minus 38. It is going to be 52. Why 52? ये नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है. तो दिस इज गोइंग टू बी 52 हियर. तो देखो एसीबी एंगल ये निकालना है. एंड इट शुड बी 95.1. अच्छा, उसने सारी जो वैल्यूज नीचे दी हुई है ना वो यहां पर लिखी हुई है. AC is 60, CB is 87. बेरिंग ऑफ C, ये पूरा बेरिंग बताया हुआ है, 38 है. They're asking you for this angle which should be 95.1. How are we going to find out this angle? देखो, we cannot directly find out this angle. First we are going to find out this angle at B by using sine rule. Sine B upon 60 equal to sine 52 upon 87. Side divided by opposite angle. Sine of the angle divided by opposite side. Side divided by sine of the opposite side. Zero 0.5434. You're going to take the sine inverse. कैलकुलेटर में तो आप डायरेक्टली साइन इनवर्स आंसर लिखेंगे. विल गेट बी एंगल है 32.91. तो हमें तो सी का एंगल निकालना है. ए सी बी 180 में से बेटा 52 एंड 32.91 माइनस कर दें. 180 माइनस आंसर माइनस 52, दैट इज 95.08. देखो इसको अब आप 1 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे. 95.1 ये अपने प्रूफ कर दिया. Now they are saying without stopping a car travels from A to town C. कह रहे कार रुके बगैर A से C जा रही है, देन C से B जा रही है, बिफोर रिटर्निंग डायरेक्टली टू टाउन A. तो बगैर रुके हुए बेटा ये पूरा पाथ पूरा फॉलो कर रही है कार. तो टोटल टाइम फॉर द कार जर्नी इज 3 hours 20 minutes. Calculate the average speed of the car for the journey. Give you the answer in kilometer per hour.
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। देखो सिंपल सी बात है, टोटल टाइम तो हमें पता है 3 hours 20 minutes। टोटल डिस्टेंस नहीं पता। 65 + 87, ये वाला ए बी का डिस्टेंस कितना है? पहले बेटा मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, दैट इज गोइंग टू बी, आई एम गोइंग टू यूज द कोसाइन रूल, या जो भी आपका दिल करे, यू कैन यूज द साइन रूल एज वेल। ए बी डिवाइड बाय साइन ऑफ द एंगल एट सी विच इज 95.1, 87 डिवाइड बाय साइन 52, मैंने साइन रूल यूज कर लिया यहां पर। 87 by sin 52, AB divided by sin C. So the AB length is going to be 87 multiplied by sin 95.1 divided by sin 52. Sin 52 आंसर क्या आ रहा है इसका? 109.96। Just make some space, मैंने बहुत ज्यादा बड़ा लिख दिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 60 + 87 + 109.96 डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम 3 hours 20 minutes है। 20 को डिवाइड बाय 60 करो, ताकि बेटा ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एट दी एंड आपको आवर्स में आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर्स में। तो देखो ये हो जाएगा 3 + 20 डिवाइड बाय 60, यूं करके लिख दो, क्योंकि वो 0.33 आ रहा है ना, तो थोड़ा एग्जैक्ट आंसर। तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं 60 + 87 + 109.96 +3 + 30 डिवाइड बाय 60, 20 डिवाइड बाय 60 यार। 77.08। तो देखो आपके पास 77.1 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर निकल कर आएगा, अप टू 3 फिगर्स। In question by 8, show that the equation can be written in this form। क्या आप इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा दें, ऐसी बात है, फिर आपके पास ये फॉर्म निकल कर आएगी, क्यूबिक फॉर्म। तो पहले मैं लास्ट 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा रहा हूं। x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2x, 1 मल्टीप्लाई बाय x इज x मल्टीप्लाई बाय -2 इज -2। Now I'm going to multiply these 2 brackets, x multiplied by x square is x cube, x multiplied by x is -x square, x multiplied by -2 is -2x, -4 multiplied by x -4x square plus 4x plus 4 2s are 8। x cube ऐसे लिखो, -5x square plus 2x plus 8। देखो आई गॉट द सेम आंसर जो उसने बोला हुआ था, हमने शो कर दिया यहाँ पर। On the diagram over here we need to sketch this graph. This is a cubic graph। क्यूबिक ग्राफ में बेटा याद रखें, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब पॉजिटिव है तो ग्राफ कोई जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूं, राइट साइड स्टैंडर्ड क्यों ग्राफ बनेगा, यूं करके जनरल स्ट्रक्चर है। आप इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए बेटा यू नीड टू हैव फ्यू स्पेसिफिक पॉइंट्स, और वो भी बेटा फैक्टराइज फॉर्म में हो। लेट्स से आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू x -4, x + 1 एंड देन x -2। तो बेटा आप इधर से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? यू गोना पुट x इज इक्वल टू 0, so it is going to become 8 over here। x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? यू गोना पुट y इक्वल टू 0 here। y इंटरसेप्ट के लिए बेटा याद रखें x या 0, और x इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4 आ गई,
x की वैल्यू -1 आ गई and x की वैल्यू 2 आ गई. So these are 3 points over here. अब देखो, you need to plot these values. तो आपने ग्राफ में थोड़ी सी ये origin हो गया. You have to label this graph. लेफ्ट x एक्स पर राइट साइड पर मैक्सिमम 4 है, लेफ्ट साइड पर -1 है. हम इक्वल डिस्टेंस में कुछ बना लेते हैं. 1 2 3 4. ये देखो लेफ्ट साइड पे बन गया. ऊपर लेबलिंग जो है ना 1 2 3 4 करके नहीं चलेंगे. 2 4 6 8 2 4 6 8. ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू लेबल इट एज 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. अच्छा, इनको तो हमें लेबल करना था. 2 4 6 के डिफरेंस है. 2 4 6 8 -2 -4 -6 -6. आपने लेबल कर दिया. अब देखो आपके पास पॉइंट कौन कौन से हैं. 0,8 4,0 -1,0 एंड 2,0. तो सर जितनी भी ग्रीन से मैंने मार्क कर लिए हैं, जस्ट ड्रॉ दिस. देखो राइट साइड स्लैंटेड ग्राफ बन रहा है ये. मेक दिस ग्राफ लाइक दिस. ठीक है ना. In this part B, they're saying the graph of y, this cubic equation has two tangents with the gradient of 10. Find the equation of the two tangents. So in order to find out the gradient of the tangent equations, tangent is a line. For line equation, we need the gradient, which we already know. You know the gradient of the tangents. But if you don't know about the points, कि किस point पे हमारे पास ये tangent बन रहे हैं. For that, we are going to use a hint of derivative. Derivative dy by dx is the dy by dx also called gradient of the tangent, which is going to be 3x square minus 10x plus 2. This is the gradient of the tangent, and which is equals to 10 over here. So what I'm going to do, I'm going to equate this equation, the gradient of dy by dx, with the gradient of the tangent, and that is equals to 10 as well. So 2 minus 10 is going to be -8 here. I'm going to break the middle term. 3 multiplied by -8 is -24. -12x plus 2x is the middle term breaking of this expression, of this equation. 3x, x minus 4, I'm going to take 2 common. It becomes x minus 4 is equal to 0. X minus 4, 3x plus 2 is equal to 0. I got 2 x values, which is 4 and -2/3 लिख दिया मैंने यहाँ पर. Now I'm going to find out the y values जहां पर बेटा हमारे पास tangent बन रहे हैं, because for the tangent equation we need to find out the point, the whole point. तो मैं x की वैल्यू पहले 4 पुट करूंगा, x की वैल्यू -2/3 पुट करूंगा. किसमें? I'm going to put these values in equation y is equals to the cubic expression, जो कर्व की इक्वेशन है. I'm going to put these values. I'm going to get -2/3 पे बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है. It is y values 112 upon 27, and if put the value of x equal to 4, you get y value is 0. तो देखो हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे. y is equals to mx plus c की फॉर्म में निकालना है, तो यही फॉर्म यूज कर लेते हैं इक्वेशन के लिए. तो देखो आपके पास ग्रेडियंट तो दोनों का 10 ही रहेगा, दोनों टेंजेंट्स का. वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c. तो फॉर 4,0 y इक्वल टू 10x plus c, y की जगह 0, x की जगह पुट 4 ओवर हियर.
The value of C is going to be minus 40. I'm going to put this value over here. मेरे पास आ रही है y equals to 10x minus 40. ये कर्व की इक्वेशन आ गई, y equal to 10x minus 40. What about second equation? बेटा यहां पर भी y पॉइंट है 100 minus 2/3 comma 112 upon 27. This is the second point. 10x plus c. y की जगह 112 upon 27 रखा, x की जगह minus 2/3. Finding the value of c here. 112 divided by 27 plus 20 upon 3. The c value is going to be 292.27. तो अपडेट कर लें, y is equal to 10x. ये हमारे पास बेटा लाइन की टेंजेंट्स की क्वेश्चन निकल कर आ गई. Now in question 9 indices, देखो यहां पर लिखा हुआ है 3x square y power 4 की होल ब्रैकेट पावर क्यूब है. So we have the power cube on all of these terms. So 3 power cube is 27, x square power 3 is 2 to the 6, you get y power 12. This is going to be my final answer. Now we have this indices again question. देखो यहाँ पर पावर नेगेटिव में है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेक द पावर पॉजिटिव बाय डूइंग द बेस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी. पावर को रेसिप्रोकल नहीं करना, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है अगर बेस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दें तो. नाउ यू कैन सी के बेटा मैं यहां पर x पावर 16 y पावर 8 और 16 को लिख रहा हूं 4 का स्क्वायर. क्यों लिख रहा हूं देखो अभी पता चल जाएगा. यहां पर बेटा x पावर 16 की होल ब्रैकेट पावर 3/2, y पावर 8 पर भी होल ब्रैकेट पावर 3/2 है और 4 स्क्वायर पर भी पावर 3/2 है. So if we just simplify these values, 6 2 1s are 2 8 are 16, 2 1s are 2 4s are 8, 2 से 2 cancel. At the end, x power 24, y power 12, 4 power 3 is 64. This is going to be a final answer. It says factorize in part B. So factorize means convert your expression into multiplication form. I got 9 as 3 square. It becomes x minus 3, x plus 3 by using the formula a square minus b square is a minus b plus b. So x minus 3, x plus 3 is going to be your factorized form. Then it says simplify this. तो देखो मैंने न्यूमरेटर में तो पहले ही फैक्टराइजेशन करी हुई थी, तो x square minus 9 को मैंने x minus 3, x plus 3 की फॉर्म में लिख लिया. I factorize this denominator as well. मैंने देखो डिनोमिनेटर में आई गॉट 2y कॉमन, x minus 3 बन गया. आई गॉट 5 कॉमन, x minus 3 बन गया. So we got x minus 3, x plus 3 in the numerator. In denominator I got x minus 3 after taking x minus 3 common and 2y plus 5 as a leftover bracket. So x minus 3, x minus 3 cancel. Final answer is going to be x plus 3 upon 2y plus 5. ठीक है. In part C they are asking you to solve this simultaneous equation. The first one, देखो ये पहली इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है. ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है. 1 के अलावा कोई भी पावर हो तो इसका मतलब भी कर्व की इक्वेशन है. तो इक्वेशन नंबर 1 इसको कह रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 इसको कह रहा हूं. आई एम गोइंग टू राइट इक्वेशन नंबर 1 हियर. 2y plus 2x plus y equal to 7. मैंने इसको कंसीडर करा और फिर यहां से y को सब्जेक्ट बना लिया विच इज 7 minus 2x. I'm going to put this y value in the second equation. सेकेंड इक्वेशन देखो हमारे पास ये लिखी हुई है, तो इसमें देखो मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा. इट बिकम्स 7 minus 2x is equal to 5x square plus 2x minus 13
तमाम टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, 2x माइनस प्लस 2x, बेटा ये 4x हो गया, -13 -7 इज गोइंग टू बी -20 हो गया। अब आपके पास बेटा दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश मत करिएगा। आपको आंसर जब भी डेसिमल प्लेस में वो देने के लिए कह दे तो समझ लो बेटा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ये होगा सवाल सॉल्व। तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, दिस इज होल 2a डिवाइड बाय होल 2a। तो x की वैल्यू वी गॉट, b की वैल्यू 4, देन वी गॉट 4 स्क्वायर, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू -20 अपॉन 2a, a की वैल्यू 5। तो देखो बेटा वी गॉट दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बेटा वी गॉट x वैल्यू, मैंने प्लस के साथ सॉल्व करा, आई गॉट x वैल्यू 1.639, आई गॉट x वैल्यू -2.439। ये दोनों x वैल्यूज मैं इक्वेशन में 1 में पुट करूंगा, सो दैट आई कैन हैव द y वैल्यू एज वेल। So 7 minus 2 into 1.639, 3.722। 11.878। तो देखो इन सारे आंसर को, कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर को बेटा मैं 1.64 x वैल्यू, y वैल्यू 3.72, x वैल्यूज -2.44, y values 11.88। this is going to be your final answer here। now in question number 10 it says a b d c f g h is a cuboid। तो CG 20 है, देखो दिस CG over here is 20, AG is 28, this is 28, and these are x values जो आपके सामने दिया हुआ है, क्योंकि बेस क्यूबॉइड है तो बेटा ये भी x होगा, दिस लाइन इज ऑल्सो गोइंग टू बी x। तो देखो कभी भी 3D शेप में अगर डायगोनल की लेंथ चाहिए हो, दिस डायगोनल ओवर हियर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अदर वर्टेक्स, डायगोनल की लेंथ चाहिए इन 3D शेप, और एक सरफेस से, फ्रंट सरफेस से लेफ्ट सरफेस का डायगोनल हो, ये फ्रंट सरफेस के वर्टेक्स से लेकर बैक सरफेस के बेटा एक वर्टेक्स तक डायगोनली जा रही हो लाइन। तो मुझे अगर इसकी लेंथ निकालनी है ना, तो आई कैन डायरेक्टली फाइंड आउट दिस लेंथ। कैसे लेंथ मालूम करूंगा? दिस 28 स्क्वायर जो कि ऑलरेडी हमें पता था इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। एंड दिस लेंथ, डायगोनल लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। नाउ आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस वैल्यूज। 28 स्क्वायर minus 20 square, it is going to be 384 divided by 2, the value of x square is going to be 192, 192 was square root, after taking square root on both sides I'll get 8 root 2 root 3, the answer is going to be 13.85 into 3 signifier, it is 13.9। ठीक है, then we have this, the diagram shows a different cuboid JKLM and PQR, MR is 60, MR is 30, correct to the nearest centimeter, KR is 37, correct to the nearest centimeter।
They are asking you to find out the lower bound of the angle between KR and the base of the cuboid. तो देखो base of the cuboid क्या है? MK, and this is the KR over here. So they are asking you from KR to the base of the cuboid angle क्या है ये, और इस एंगल का भी लोअर बाउंड चाहिए. चलो पहले बात करते हैं कि एंगल किस तरह निकालेंगे. तो बेटा एंगल निकालेंगे, क्योंकि हमें दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री है, ये बेटा यहां पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है और ये बेस है. बेस और वर्टिकल लाइन के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा. अब देखो यहां पर आपको अपोजिट पता है, सॉरी आपको हाइपोटेन्यूज पता है 37, और बेटा ये 30 इज द अपोजिट ओवर हियर. तो साइन थीटा अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला होता है. अब देखो क्योंकि आपको इस, अगर मुझे थीटा निकालना है तो बेटा मैं यहां पर साइन इनवर्स करूंगा. आई एम गोइंग टू टेक द साइन इनवर्स हियर ऑफ 30 ओवर 37. बट क्योंकि मुझे थीटा का लोअर बाउंड चाहिए, तो बेटा मैं इन दो वैल्यूज में से जो न्यूमरेटर की वैल्यू है विच इज 30, जो 30 वैल्यू है, आई एम गोइंग टू टेक द लोअर बाउंड ऑफ दिस वैल्यू. देखो साइन इनवर्स में याद रखें, न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा, सॉरी न्यूमरेटर जितना छोटा होगा और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, तो बेटा एट दी एंड आंसर उतना ही छोटा आता है. साइन इनवर्स करने के बाद वैल्यू उतनी ही छोटी आती है. तो देखो आई एम गोइंग टू टेक द लोअर बाउंड ऑफ दिस टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर है. नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब है 1 डिवाइड बाय 2 0.5 करा, तो 30.5 में 30 में बेटा वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 0.5, तो लोअर बाउंड आएगा, ऐड करेंगे तो अपर बाउंड आएगा. तो ये बन जाएगा 29.5, ये बन जाएगा 30.5. हमें क्या चाहिए? हमें लोअर बाउंड चाहिए. सो वी आर गोइंग टू टेक द लोअर बाउंड ऑफ दिस वैल्यू विच इज 29.5, और बेटा दूसरी जो वैल्यू है विच इज KR 37, इसका भी लोअर बाउंड अपर बाउंड निकालूंगा. 37 माइनस 0.5, 37 प्लस 0.5. वैसे दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू फाइंड आउट द होल वैल्यू. मुझे सिर्फ अपर बाउंड चाहिए इसका 37.5, मुझे लोअर बाउंड नहीं चाहिए. आई नीड द अपर बाउंड. तो यहां पर 37 की जगह देखो मैं 37.5 लिख रहा हूं. आई एम गोइंग टू टेक द साइन इनवर्स ऑफ बोथ वैल्यूज. 29.5 डिवाइड बाय 37.5, ये 51.87 आ रहा है, ये 51.9 इसका लोअर बाउंड आ जाएगा. तो बेटा अगर आपको लोअर बाउंड थीटा का साइन थीटा में चाहिए तो यू शुड हैव द लोअर बाउंड हियर, और बेटा इधर आपके पास अपर बाउंड होगा. फिर जब आप साइन इनवर्स करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड हियर. अगर आपको इस बारे में ये हो कि सर नहीं हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा आप इसका वाइस वर्सा करके देख लो, इसका अपर बाउंड इसका लोअर बाउंड ले लो. यानी if you just take out, just experiment this one, if you take out the sine inverse of upper bound 30.5, lower bound is 36.5 over here. So sine inverse देखो इससे 56.6 आ रहा है, 68, which is wrong. तो my final answer is 51.9. मैंने वाइस वर्सा की चेक करके देख लिया, जिससे लोअर वैल्यू आ रही है बेटा वही फ्रैक्शन में कंसीडर करूंगा. तो इसका लोअर बाउंड इसका अपर बाउंड इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर. नाउ दैट्स इट फॉर द पेपर. थैंक यू सो मच.